Okay, so let's start with the next topic. So till now we discussed what is 2PL, growing and shrinking phase, and after that we saw the modified protocols for two-phase locking. One was strict 2PL and another was rigorous 2PL. So there was some advantages plus some disadvantages of those techniques also. So we came across with one of the major problems that occurs whenever we deal with concurrent transactions. So that is known as deadlock. So once again, I'm showing you this example, although we have already discussed this example 2 or 3 times in the previous lectures. So now I hope you clearly understand what is the meaning of deadlock. If we have multiple transactions and one transaction is holding some lock on some specific data item and is waiting for another data item to complete its execution, and that data item is held by another transaction, and still suppose if we have one more transaction, so that is also waiting for some resource or data item which is held by some other transaction. So that will create a deadlock situation. None of the transaction will make progress. So that situation is known as deadlock, and solution हमने देखा था. तो यहाँ पर already I have discussed this example. So T3 is currently holding the data item B and is waiting for data item A. Similarly, T4 is holding data item A and is waiting for data item B. So definitely this is the deadlock situation where T3 requires data item A to complete its execution, whereas T4 requires data item B to complete its execution, but none of the transaction is ready to release the data item which it is currently holding. So definitely none of these transactions will be able to make progress, and the situation is known as deadlock. And to handle the deadlock or to ब्रेक दिस डेडलॉक सिचुएशन, डेफिनेटली किसी एक ट्रांजेक्शन को हमें रोल बैक करना होगा. तो रोल बैक जैसी होगी तो वो डेफिनेटली डेटा आइटम रिलीज हो जाएगा और दूसरी ट्रांजेक्शन डेफिनेटली उसी टाइम पर उस रिलीज्ड डेटा आइटम पर लॉक एक्वायर कर सकेगी. सो इन दिस वे हमने थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया था डेडलॉक्स के बारे में. तो आज थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे क्या सिनेरियो है. सो डेडलॉक को हैंडल कैसे किया जाता है. सो डेफिनेटली system is in deadlocked state if there is a set of transactions such that every transaction is in the set is waiting for another transaction in the set. So last time we discussed kiya tha that there are two major ways to handle the deadlock. First is known as deadlock prevention. That means हम एश्योर करें कि सिस्टम में हम कभी डेडलॉक आने ही नहीं देंगे. हम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाएंगे जो कभी भी सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में जाने ही नहीं देंगे. सेकंड मेथड ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग वाज कि भाई ठीक है, अगर आ गया डेडलॉक उसके बाद डेडलॉक को डिटेक्ट करो एज सून एज पॉसिबल एंड साथ ही साथ उसको रिकवर करो. तो इसी पर हम आज फोकस करेंगे. उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे अगर टाइम अलाउ करेगा. So deadlock prevention is the very first method for deadlock handling, and deadlock prevention protocols ensure that the system will never enter into a deadlock state. तो यहाँ पर कुछ अलग अलग strategies हमें given है by which we can prevent any system from entering into the deadlock. So it says पहली condition क्या बोलती है भाई, सारी जो transaction है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही सारे डेटा आइटम्स पर लॉक एक्वायर कर ले. तो भाई ये तो एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है कि ट्रांजैक्शन को एग्जैक्टली कई बार पता भी नहीं होता कि उसको कौन कौन से डेटा आइटम्स की नीड पड़ने वाली है. तो वो पहले से ही अगर सबको अपने पास लॉक करके रख लेगी तो डेफिनेटली बाकी सारी ट्रांजैक्शन वेट ही करती रह जाएंगी. सेकंड सॉल्यूशन डेडलॉक प्रिवेंशन का बोलता है कि एक ऑर्डर फिक्स करता हूँ कि भाई पहले हम ए डेटा आइटम T1 को देंगे, फिर थोड़ी देर बाद T2 को दे देंगे, फिर T3 को दे देंगे, ताकि जब T3 ए को एक्सेस कर रही हो उस टाइम पर कोई और ट्रांजैक्शन डेटा आइटम ए के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगी. सिमिलरली अगर T3 के पास A है तो उस टाइम T1 के पास डेटा आइटम B हो. सो एवरी डेटा आइटम हैज फिक्स्ड पार्शियल ऑर्डरिंग सच दैट एक टाइम पर एक डेटा आइटम एक ही ट्रांजैक्शन होल्ड कर रही हो और उस टाइम पर और कोई ट्रांजैक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर डेटा आइटम के लिए रिक्वेस्ट ना करे. तो अगर कुछ इस तरह से सिस्टम्स को शेड्यूल किया जाए, मैनेज किया जाए तो डेडलॉक नहीं आएगा. सो दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स टू prevent the deadlock. Other than those, we have interesting scenarios and other ways to prevent the deadlock.
and these strategies are based on the transaction timestamp. तो ये timestamp पर based है. So timestamp क्या है? So timestamp को simple सा हमें एक word याद रखना है, entry time of the transaction into the system. तो कोई भी transaction कब चलना start हुई, so that is known as timestamp. So definitely you know कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. तो यहाँ पर ये जो हमारा टाइम स्टैम्प चलता है, यू नो, अगर सपोज 0th सेकेंड या कोई भी नैनो सेकेंड हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है. सो समथिंग लाइक दिस, आर ट्रांजैक्शन प्रोसीड्स 2 सेकेंड्स पर क्या था, फिर 4 सेकेंड्स पर क्या था, 6 पर क्या था, 8 पर क्या था, एंड सो ऑन. तो यू ऑल नो दैट एक रो पर एक टाइम पर एक ही ट्रांजैक्शन जो है हमारा अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है. सो डेफिनेटली इफ आई एम ड्राइंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, then timestamp of this transaction T1 is less than timestamp of transaction T2, because timestamp is the entry timing of any transaction. So T1 का जो timestamp है, मैं बोल रहा हूँ 2 सेकेंड था, and T2 का जो timestamp है वो 4 सेकेंड था. तो डेफिनेटली जो T1 का timestamp है वो कम है. कम मीन्स ट्रांजेक्शन T1 पहले आई है मीन्स इसने अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया है पहले as compared to transaction T2. तो टाइम स्टैम्प को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन की हेल्प लेने वाले हैं. तो यहाँ पर है 2 अलग अलग टेक्निक्स. फर्स्ट का नाम है वेट डाई स्कीम एंड सेकंड का नाम है वाउंड वेट स्कीम. और यहाँ पर 2 बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी डिटेल में पढ़ोगे, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. तो वहाँ पर हम प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं. बट डेफिनेटली दोनों ही एंटिटीज ऐसी हैं जो कॉन्करेंटली रन करनी है. सो दैट्स वाई ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो भाई प्रीएम्प्टिव का सिंपल सा मतलब होता है हम फोर्सफुली कुछ भी प्रीएम्प्ट करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डेटा आइटम होल्ड कर कर बैठी हुई है तो हम फोर्सफुली उस ट्रांजैक्शन से वो डेटा आइटम छीन सकते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्प्शन. एंड नॉन प्रीएम्प्टिव सेज once a data item is allocated to any specific transaction, तो वो भी अपना पूरा काम कंप्लीट करेगी जब तक वो खुद अनलॉक नहीं करती किसी गिवन डेटा आइटम को. तो तब तक हम उस ट्रांजैक्शन से उस डेटा आइटम का एक्सेस नहीं ले सकते. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. सो प्रीएम्प्टिव मीन्स forcefully evacuating the data item, and non preemption means we cannot force the given transaction to release the data item which is it is holding currently. So यहाँ पर 2 अलग अलग स्कीम्स हैं. पहली का नाम है वेट डाई एंड सेकंड का नाम है वाउंड वेट. तो ये दोनों ही जो है ये बेस्ड है हमारी टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन पे. तो टाइम स्टैम्प क्या होता है मैंने आपको बता दिया. अगर हमारे को कोई भी शेड्यूल गिवन है जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, सो हम हमेशा बॉटम टू टॉप टू बॉटम जाते हैं और टाइम कुछ इस तरह से फ्लो करता है. तो ये जिस टाइम पर इसकी T1 की इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूट होना, तो वो उसका टाइम स्टैम्प है. तो और ये 2 सेकेंड्स में बोल सकता हूँ T1 का टाइम स्टैम्प हो गया, और 4 सेकेंड्स जो है वो T2 का टाइम स्टैम्प हो गया. सो मींस जो T1 है यानी कि जिसका टाइम स्टैम्प कम है वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, वो पहले आई है, वो सीनियर ट्रांजैक्शन है. जबकि जिसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा बड़ी है, वो ट्रांजैक्शन बाद में आई है, वो जूनियर ट्रांजैक्शन है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वो यंगर ट्रांजैक्शन है. तो ये पता होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये जो लाइन लिखी है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है. तो अगर आपको ये मीनिंग पता है कि मैं यंगर ट्रांजैक्शन किसको बोल रहा हूँ, ओल्डर ट्रांजैक्शन किसको बोल रहा हूँ, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. तो जिस भी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प मिनिमम होगा या कम होगा वो है हमारी ओल्डर ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो पहले आई सिस्टम है, वो पहले एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई. और जिस भी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प, सो डेफिनेटली दैट इज यंगर, वो जूनियर है, वो बाद में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई है. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प एंड रिलेटेड, और वी कैन नेम इट एज ओल्डर और यंगर ट्रांजैक्शंस. चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं वेट डाई स्कीम की. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट डेडलॉक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेट डाई स्कीम इज नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स once any data item is allocated to any transaction Ti, then we cannot forcefully evacuate or we cannot force any transaction
दैट ट्रांजेक्शन टू रिलीज द डेटा आइटम। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, उससे और ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक डेटा आइटम है x और दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है हमारे पास, एक ti है और एक tj है। तो ये जो डेटा आइटम x है इसको करंटली होल्ड किया हुआ है ट्रांजैक्शन tj ने, एंड ti इसको रिक्वेस्ट कर रही है अपनी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कि ti कहती है कि मुझे x पर लॉक एक्वायर करना है, लेकिन अभी करंटली जो ये x डेटा आइटम है ये होल्ड किया हुआ है ट्रांजैक्शन tj ने। तो उसके बाद हम सीखते हैं भाई हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये स्कीम क्या कहती है, ये लाइन क्या कहती है। तो बड़ी सिंपल सी बात ये बोलती है कि अगर जो TI ट्रांजैक्शन है वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, ओल्डर मींस अगर ये पहले आई थी, यानी कि मैं अगर इसको T1 T2 ही रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये तो हम जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं TI एंड TJ। So older transactions may wait for younger ones to release the data item. So it says कि जो रिक्वेस्ट कर रही है ट्रांजैक्शन, तो पहले तो सिंपल सा ये सिनेरियो में पता होना चाहिए, एक्स डेटा आइटम टीजे ने होल्ड की हुई है एंड T1 ट्रांजैक्शन इस पर रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे एक्स की नीड है, बट एक्स तो अभी ऑलरेडी टीजे के पास है। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं भाई, या तो TI यंगर हो सकती है या फिर ओल्डर हो सकती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का टाइम स्टैम्प कंपेयर करेंगे। तो ओल्डर ट्रांजैक्शन, अगर TI ट्रांजैक्शन ओल्डर है, ओल्डर मीन्स इसका टाइम स्टैम्प कम है, लाइक यहाँ पर T1 का टाइम स्टैम्प कम है, तो ये एक ओल्डर ट्रांजैक्शन है, ये सीनियर ट्रांजैक्शन है। तो इस केस में अगर TI ओल्डर ट्रांजैक्शन है तब तो ये वेट करेगी TJ के लिए कि ये इस डेटा आइटम X को रिलीज कर दे, और जब ये अपना प्रोसेस करने के बाद रिलीज कर देगी X को, तो ये डेफिनेटली इसको एक्वायर कर लेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेट। तो वेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ओल्डर ट्रांजैक्शन के लिए। सेकंड केस की तरफ चलते हैं, अगर ये जो TI थी ये हमारी होती यंगर ट्रांजैक्शन, यानी कि इसका टाइम स्टैम्प की वैल्यू होती ग्रेटर इसके टाइम स्टैम्प से, तो भाई बिल्कुल सही बात है। उस केस में TI तो हमारी जूनियर थी और TJ हमारी सीनियर थी। तो जो पहले आई थी TJ, इसी का एक्सेस था, इसी का राइट था कि जो TJ है वो पहले डेटा आइटम X पर एक्सेस करे या उस पर लॉक एक्वायर करे। तो यहाँ पर TJ है हमारी ओल्डर ट्रांजैक्शन और TI है हमारी यंगर ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई डेटा आइटम किसी ओल्डर ट्रांजैक्शन ने ऑलरेडी होल्ड की हुई है और कोई यंगर ट्रांजैक्शन उसके लिए रिक्वेस्ट करती है, तो भाई यहाँ पर वेट का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर सीधा बोलते हैं भाई इस ट्रांजैक्शन TI को कर दो डाई या इसको कर दो रोल बैक। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेट डाई स्कीम विच इज नॉन प्रिएम्प्टिव। बिकॉज नॉन प्रिएम्प्टिव है तो हम फोर्सफुली तो किसी भी केस में छुड़वा नहीं सकते जब तक कोई भी ट्रांजैक्शन अपना टास्क पूरा नहीं कर लेती। तो ये दो बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमें याद रखनी है। एक ट्रांजैक्शन TJ ने X को होल्ड किया हुआ है और सेकंड ट्रांजैक्शन TI अगर इस पर रिक्वेस्ट करती है X के लिए, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा केस है। अगर TI होगी ओल्डर तो फिर ये वेट करेगी TJ को इसको रिलीज करने को। अगर ये TI होगी यंगर तो इसको बोला जाएगा भाई तुमने कर देना है रोल बैक, यानी कि डाई हो जा, तेरे को X अभी हम नहीं देने वाले। सो ओल्डर ट्रांजैक्शन में वेट फॉर यंगर वंस टू रिलीज द डेटा आइटम। तो ये पहला केस है जहां पर मैंने डिस्कस किया कि जो TI है ये ओल्डर है, ये पहले आई थी, ये सीनियर है, एंड ओल्डर मीन स्मॉलर टाइम स्टैम्प मैं आपको समझा चुका हूँ। यंगर ट्रांजैक्शंस नेवर वेट फॉर ओल्डर वन, दे आर रोल्ड बैक इंस्टेंट। तो अगर TJ सीनियर होती तो ऑलरेडी इसने X होल्ड कर रखा था, और इसके बाद जो यंगर यानी कि बाद वाली कोई ट्रांजैक्शन अगर आगे कहती है कि मुझे भी X चाहिए, तो इसको बोलते हैं कि वापस चली जा, डाई हो जा, रोल बैक हो जा, अभी हम X तुझे देने के मूड में नहीं है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेट डाई स्कीम। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो जल्दी से। चलो नेक्स्ट है वाउंड वेट स्कीम। एक और मेथड है डेडलॉक को प्रिवेंट करने का। मेन डिफरेंस ये प्रिएम्प्टिव है, तो प्रिएम्प्टिव है तो भाई यहाँ पर तो हम जबरदस्ती फोर्सफुली भी छुड़वा सकते हैं किसी एक ट्रांजैक्शन से कोई डेटा आइटम, तो डेफिनेटली हमेशा सीनियर का रोप ज्यादा रहेगा। तो सीनियर
प्रीएम्प्ट करवा पाएगा। और जब भी हम यंगर ट्रांजेक्शन की बात करेंगे जूनियर की, तो उस केस में फिर उसको या तो वेट करना पड़ेगा या डाई करना पड़ेगा। तो नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर तो हम बोल रहे थे वेट और डाई। तो अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन थी तो वो वेट करेगी यंगर के लिए रिलीज करने के लिए, लेकिन अगर हमारी थी यंगर ट्रांजेक्शन तो वो रोल बैक हो जाएगी, यानी कि डाई हो जाएगी। अब चलते हैं वाउंड वेट की तरफ। तो वाउंड वेट में भी हमें सेम सिनेरियो ही लेना है जो अभी तक मैं आप लोगों से यहाँ डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम पिक्चर हम बना लेते हैं कि एक डेटा आइटम एक्स है जिसको करंटली टी जे ने होल्ड किया हुआ है और टी आई ने उसको रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर फिर से दो अलग अलग केसेस, अगर टी आई है उसका टाइम स्टैम्प कम है, यानी कि वो है हमारी सीनियर ट्रांजैक्शन, वो है हमारी ओल्डर ट्रांजैक्शन, तो भाई वो तो यहाँ पर कर देगी फोर्सफुली रिलीज करवा लेगी अपनी जूनियर ट्रांजैक्शन से, भाई एक्स मुझे दे दे। तो वाउंड है मींस कि वो एक ट्रांजैक्शन टीजे को एक तरह का जख्म देगी, एक तरह की चोट पहुंचाएगी, और चोट पहुंचा के ये डेटा आइटम एक्स को इससे छीन के अपने पास ले आएगी और इस पे अपना फर्दर प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगी। तो ओल्डर ट्रांजैक्शन है अगर टी आई, तो ये एक्स प्रीएम्प्ट हो जाएगा, टीजे के पास नहीं रहेगा, इससे वापस टीआई के पास चला जाएगा। सो ओल्डर ट्रांजैक्शन बाउंड्स ऑफ यंगर ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो यहाँ पर वेट टाइम में तो ये वेट कर रहा था, लेकिन अब बाउंड वेट में ये वेट नहीं करने वाला, ये जबरदस्ती से एक्स को छीन लेगा। और अगर टी आई होती हमारी यंगर ट्रांजैक्शन, अगर ये बाद में आई होती तो फिर ये इस केस में वेट करेगा, भाई टीजे तो सीनियर है, तो जब ये रिलीज करेगा एक्स को उसके बाद मैं इसको एक्सेस कर लूंगा। सो दिस इज द स्टोरी, this is the difference between wait die scheme and this is the story of wound wait scheme। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये पहले वाला वर्ड ये ओल्डर ट्रांजैक्शन के लिए है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो वेट डाई में ओल्डर वाली ट्रांजैक्शन वेट करती है और वाउंड वेट में ओल्डर वाली ट्रांजैक्शन वाउंड देती है दूसरी ट्रांजैक्शन को और जबरदस्ती इस एक्स को छीन लेती है। वेट डाई में यंगर वाली जो ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक हो जाती है, वो वेट नहीं करेगी। और वाउंड वेट में जो यंगर वाली ट्रांजैक्शन है वो वेट करेगी, भाई मेरी सीनियर ट्रांजैक्शन डेटा आइटम को रिलीज करे, उसके बाद मैं उसको एक्सेस कर लूं। दोनों ही प्रॉब्लम्स ठीक ठाक है, डेडलॉक नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर रोल बैक बहुत ज्यादा होंगे। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर अगर जो हमारी ट्रांजैक्शन टी आई है अगर वो यंगर होगी तो उसको रोल बैक करेंगे हर टाइम। यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ कम रोल बैक्स होंगे वेट डाई के कंपैरिजन में, बट डेफिनेटली रोल बैकिंग यहाँ पर भी होगी। तो बार बार रोल बैक करना, ट्रांजैक्शन को दोबारा स्टार्ट करना इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। Both in wait die and in wait scheme, a rolled back transaction is restarted with its original timestamp. Older transactions have precedence over newer ones and starvation is avoided. So कुछ advantages हो गए, कुछ disadvantages हो गए। एक और स्कीम है थर्ड जिसको हम बोलते हैं टाइम आउट बेस्ड स्कीम। तो अभी दो हमने सीखी डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए, तो पहली थी वेट डाई एंड सेकंड थी वाउंड वेट। एक और है जो टाइम आउट के कॉन्सेप्ट को यूज करेगी। सो अ ट्रांजैक्शन वेट्स फॉर अ लॉक ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। तो भाई फिर से ये डायग्राम बना लेते हैं, इससे थोड़ी सी जल्दी समझ आ जाता है। तो भाई एक्स अगर होल्ड किया हुआ है एक ट्रांजैक्शन टी जे ने, चलो मैं T2 ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक ट्रांजैक्शन T1 है जो इस एक्स को एक्सेस करना चाहती है। तो भाई यहाँ पर एक टाइम लिमिट फिक्स हो जाएगी, एक टाइमर चला देंगे, भाई 6 सेकेंड्स तक ही जो T1 ट्रांजैक्शन है वो वेट करेगी कि मुझे X मिल जाए। तो अगर उस स्पेसिफिक टाइम तक वो वाले डेटा आइटम पर एक्सेस नहीं मिलता, यानी कि ग्रांट नहीं मिलती, तो फिर इस केस में ये ट्रांजैक्शन T1 रोल बैक हो जाएगी और फिर से अपना प्रोसेस करना स्टार्ट करेगी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ, बड़ी सिंपल सी स्कीम है टाइम आउट बेस्ड स्कीम, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बट यहाँ पर स्टारवेशन आ सकता है कि हो सकता है कि भाई ट्रांजैक्शन T2 कितनी देर तक इसको रिलीज ना करे, उसको बहुत देर तक एक्स पर काम करना हो, तो भाई T1 बार बार 6 सेकंड्स के बाद रोल बैक होती रहेगी, रोल बैक होती रहेगी। तो यहाँ पर हम फिर से पार्शियलिटी कर रहे हैं कि T1 के पास तो हमने एक्स दे दिया है और T1 बार बार रोल बैक हो रही है, तो ये फिर एक स्टारवेशन की सिचुएशन की तरफ हमें ले जाएगा जहां पर एक ही ट्रांजैक्शन बार बार रोल बैक हो रही है। और ये कहता है कि इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन गुड वैल्यू ऑफ द टाइम आउट इंटरवल। तो किस ट्रांजैक्शन के लिए हम टाइम आउट कितना टाइमर सेट करें, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ऐसा हो सकता है भाई T1 को T2 को बहुत थोड़ी देर के लिए चाहिए हो एक्स, उस केस में तो इसको मिल जाएगा, लेकिन अगर T2 को कुछ मिनट्स के लिए चाहिए हो, हाफ आवर के लिए चाहिए हो, तो ये आप सोच सकते हो कि T1 यहाँ पर कितनी बार रोल बैक होने वाली है। सो दीज आर सम ऑफ द
टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन, तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। डेडलॉक नहीं आएगा बट बहुत ज़्यादा रोल बैक यहाँ पर होगा, और कुछ कुछ केसेस में एक्सेस रोल बैक की वजह से स्टारवेशन की प्रॉब्लम अभी भी यहाँ रहेगी। डेडलॉक यहाँ पर डेफिनेटली इन तीनों स्कीम्स में हम प्रिवेंट कर पाएंगे। चलो सेकेंड मैथड की तरफ बढ़ते हैं, डेडलॉक हैंडलिंग। पहला हमने देखा डेडलॉक प्रिवेंशन, तो डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, अलग अलग स्कीम्स की हेल्प से हम डेडलॉक को प्रिवेंट करेंगे। ये सेकंड केस है जहां पर डेडलॉक आ चुका है, डेडलॉक प्रिवेंट नहीं कर पाए, या हमने कोई भी डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स को यूज नहीं किया। तो जैसे ही डेडलॉक सिस्टम में आ गया, कोई भी ट्रांजैक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, तो फिर हम जल्दी से डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पर है, और फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो डेडलॉक डिटेक्ट कैसे किया जाता है, बड़ी सिंपल सी स्कीम है। डेडलॉक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वेट फॉर ग्राफ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक वेट फॉर ग्राफ। तो ग्राफ यू ऑल नो इट इज कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एज वेल एज सेट ऑफ एजेस। तो वी जो है सेट ऑफ वर्टिसेस है, और ये हम बनाएंगे जितनी भी ट्रांजैक्शन उस टाइम पर सिस्टम में एग्जीक्यूटली कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही होंगी। तो हर नोड रिप्रेजेंट करेगी एक ट्रांजैक्शन को, और ई हमारा सेट ऑफ एजेस होता है। तो किसी एक ट्रांजैक्शन टी आई से टी जे पर हम तब पेयर बनाएंगे या एज बनाएंगे जब टी आई वेट कर रही होगी किसी ऐसे डेटा आइटम की जो टी जे ने होल्ड की होगी। तो ये कुछ ग्राफ बनेगा इस तरह का। तो यहाँ आप देख सकते हो चार अलग अलग ट्रांजेक्शन है। T17 से 18 पर भी एज है और 19 पर भी एज है, यानी कि T17 एक ऐसी डेटा आइटम की वेट में है जो T18 ने होल्ड की हुई है, और एक ऐसी डेटा आइटम की वेट में भी है जो T19 ने होल्ड की हुई है। T18 फिर फर्दर एक ऐसी डेटा आइटम की वेट में है जो T20 के पास है, एंड T19 फर्दर वेट कर रही है T18 के लिए। तो ये वेट फॉर ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, और एक सिंपल सा कंक्लूजन हमें निकालना है। अगर वेट फॉर ग्राफ में कहीं भी साइकिल आ जाती है तो भाई वो है डेडलॉक की सिचुएशन, और अगर यहाँ पर साइकिल नहीं बनती तो फिर डेडलॉक नहीं है। तो डेडलॉक डिटेक्शन करने के लिए हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। तो आप बड़ी इजीली देख सकते हो, यहाँ से T20 को किसी भी डेटा आइटम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जैसे ही अपना काम फिनिश करेगी T20 अपना डेटा आइटम रिलीज कर देगी, उसको T18 ले लेगा। तो इस तरह से सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दी है, T20 को भी फर्दर एक ऐसा डेटा आइटम चाहिए जो T19 ने होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गई है एक साइकिल। तो जैसे ही साइकिल बन जाएगी तो सिंपल सा मतलब है भाई दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। तो यहाँ पर हमें किसी ना किसी ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास जो डेटा आइटम्स है वो रिलीज होंगे। The system is in a deadlock state if and only if the wait for graph has a cycle must invoke a deadlock detection algorithm periodically to look for the cycles। तो ये कहता है कि ये डेडलॉक डिटेक्शन वाली एल्गोरिदम टाइम टू टाइम सिस्टम को रन करते रहना चाहिए। किस लिए? साइकिल चेक करता रहे कि भाई साइकिल बन रहा है या नहीं। जब तक साइकिल नहीं बन रहा, बिल्कुल ठीक ठाक सिस्टम चल रहा है, हर ट्रांजेक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेगी। लेकिन पीरियोडिकली रन करने के बाद अगर कभी भी वेट फॉर ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट हुआ, सो दैट मीन्स वहां पर डेडलॉक आ गया है, और उसके बाद फिर हमें करना है रिकवर। तो रिकवर में हम क्या करते हैं, तो भी रिकवर के लिए भी कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। सो व्हेन डेडलॉक इज डिटेक्टेड, तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं विक्टिम को। वही विक्टिम मीन्स हम कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन को रोल बैक करें जो रोल बैक होने पर सबसे कम नुकसान करे हमारा, एज कंपेयर टू अदर ट्रांजेक्शंस जो सारी इन्वॉल्व है हमारी कंकरेंट एग्जीक्यूशन में। So some transactions will have to be rolled back to break down the deadlock, and we will always select that transaction as victim transaction that will incur minimum cost. उसके बाद भाई कुछ और केसेस है, तो ये कहता है कि भाई पूरा सब कुछ सारा कुछ ही हम पूरी ट्रांजैक्शन को ही रोल बैक कर दें, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से चलाएं, या फिर एक सेव पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ तक सब कुछ ठीक था सिस्टम में, तो उस सेव पॉइंट तक हम ले जाएं, वहां से हम दोबारा चलाना स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द ट्रांजैक्शन इनिशियली। सो टोटल रोल बैक मीन्स ट्रांजैक्शन को हम अबॉर्ट ही कर दें, फिर से रीस्टार्ट करें। एंड उसके बाद एक और पॉइंट है, मोर इफेक्टिव टू रोल बैक ट्रांजैक्शन ओनली एज फार एज नेसेसरी टू ब्रेक द डेडलॉक। तो कहता है कि वहां तक ही रोल बैक कर दो जहां तक हमें लगता है कि डेडलॉक ब्रेक हो गया होगा, बिल्कुल रीस्टार्ट मत करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है, अब वैसे हमें पता है कि रोल बैक में हमेशा हम स्टार्टिंग से ही चलते हैं, लेकिन सेव पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो बीच में सेव पॉइंट्स बनते रहते हैं कि यहाँ तक क्या जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेव हो गई हैं, तो इन बिटवीन हम वहाँ से भी अपनी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर पाते हैं अगर हमें डेडलॉक को ब्रेक करना है। एंड ये कहता है स्टारवेशन
आ सकता है कि हम हर बार अगर सेम ट्रांजेक्शन को ही विक्टिम चूज करते रहेंगे तो बड़ी सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार रोल बैक करना भी एक अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। डेडलॉक क्या है, डेडलॉक को हैंडल कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, और अगर हम डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर पाए तो फिर हम बात करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन की। तो डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं वेट फॉर ग्राफ का। वेट फॉर ग्राफ के अंदर हम बनाते हैं नोड्स एंड एजेस। सो इफ वेट फॉर ग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ अ साइकिल, दैट मींस डेडलॉक इज देयर, and if there is a no cycle in the wait for graph then there is no deadlock, and साइकिल बनते ही डेडलॉक डिटेक्ट हो गया। तो डेडलॉक डिटेक्ट होने के बाद हम इनमें से कोई भी एक टेक्निक को यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं डेडलॉक रिकवरी टेक्निक। सो सिलेक्टिंग विक्टिम इज वन टेक्निक, देन रोल बैक के अंदर दो अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं डेडलॉक से रिकवर करने के लिए। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? Okay, moving on to the next topic which is very important, multiple granularity। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है हमारे पास लॉकिंग के लिए। तो मैं फिर से अब लॉकिंग पर आ गया हूँ, डेडलॉक को छोड़ रहे हैं, डेडलॉक फिनिश हो गया है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स की। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स में हमने देखा शेयर्ड लॉक है, एक्सक्लूसिव लॉक है। उसके बाद फिर हमने देखा टू फेज लॉकिंग मेथड अगर हम यूज करें तो काफी सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। उसमें भी फिर हमने फर्दर देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर हम रिग्रेस की बात की, स्ट्रिक्ट की बात की। तो ये एक और हमारे पास प्रोटोकॉल है जो हमें हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी अचीव करने में। सो यहाँ पर कुछ बिल्कुल ही नई टर्म हमें दिख रही है, मल्टीपल ग्रेनुलैरिटी। तो क्या है, करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस। तो जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ, और अगर कंप्लीट हो जाएगा दैट इज ओके, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, कुछ अलग वे में हमें सोचना है। तो ग्रेनुलैरिटी का एक सिंपल सा मीनिंग होता है साइज ऑफ द डेटा आइटम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रेनुलैरिटी है क्या। सो साइज ऑफ द डेटा आइटम इज नोन एज ग्रेनुलैरिटी। तो अगर मैं एक डेटाबेस की बात करूं तो एक डेटाबेस का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो सकता है। One database can consist of multiple tables. Each table can consist of different number of rows and columns, and definitely in some of the rows there may be some null values. So एक hierarchy होती है कि जो database का size है वो definitely एक table के size से हमेशा बड़ा होगा। एक table का जो size है वो एक individual tuple के या record के size से बड़ा होगा। एक record का या एक tuple का जो size है वो एक individual field यानी कि एक simple value किसी एक attribute की value से बड़ा होगा। तो यहाँ पर अभी तक जितनी भी डिस्कशंस हमने की है वो हमने की है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल डेटा आइटम। हम हमेशा बोल रहे थे कि भाई हमारे पास ए है, बी है, तो वो एक सिंपल वेरिएबल भी हो सकता है, बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट डेटा आइटम की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी बोलती है भाई डेटा आइटम जो भी डेटाबेस के अंदर यूज होते हैं इट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, एंड साइज ऑफ द डेटा आइटम व्हिच आर अलाउड टू लॉक आर नोन एज ग्रैनुलैरिटी। तो जितने भी अलग अलग तरह के डेटा आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं डेटाबेस सिस्टम में जिनको कोई भी ट्रांजैक्शन लॉक कर सकती है अपने यूज के लिए, तो वो हम बोलते हैं ग्रैनुलैरिटी। एंड मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी मींस भाई डिफरेंट साइज के डेटा आइटम हो सकते हैं हमारे डेटाबेस में। तो अगर मैं बात करूं पूरे डेटाबेस की तो डेफिनेटली सबसे बड़ा साइज का जो डेटा आइटम है वो डेटाबेस इटसेल्फ है। उससे लोअर लेवल पर हम जाएं तो उसको हम बोलते हैं टेबल्स या रिलेशंस। टेबल्स के अंदर टपल्स हैं, टपल्स के अंदर वैल्यूज हैं, तो कुछ इस तरह से हम हायरार्की बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब ट्रांजैक्शन सिर्फ डेटा आइटम ए और बी को लॉक नहीं करेगी, ट्रांजैक्शन कहेगी कि मुझे पूरे डेटाबेस पे लॉक चाहिए। ट्रांजैक्शन कहेगी मुझे इस डेटाबेस के अंदर जो ये 4 टेबल्स हैं T1, T2, T3, T4 उसमें से मुझे T3 पर लॉक चाहिए। तो अब हम सिर्फ ए और बी पर रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम सोच रहे हैं डेटाबेस के अंदर कितने अलग अलग तरह के डेटा आइटम्स हो सकते हैं और उनके साइज में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो डेफिनेटली एक जो सिंपल वैल्यू है वो सबसे छोटी यूनिट हो गई, फिर एक टपल हो गया, टपल के बाद फिर हायर लेवल पर टेबल हो गया, और टेबल के बाद फिर
डेटाबेस इटसेल्फ हो गया। तो कुछ इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो लॉक लगाने वाले हैं, लॉक हम सिर्फ ए और बी पर नहीं लगाने वाले, हम कहेंगे भाई हमें इस पूरे रिकॉर्ड पर लॉक लगाना है, हमें पूरे टेबल पर लॉक लगाना है। तो यानी कि जो भी डेटा आइटम्स अवेलेबल हैं जिसको हम लॉक कर सकते हैं, उनका जो साइज है वो अलग अलग साइज है, और हर डेटा आइटम को हम अलग हायरार्की से रिप्रेजेंट करेंगे। हम ट्रीज का यहाँ पर यूज करेंगे, बिकॉज आप लोगों को पता है डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी हायरार्किकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रीज आर द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं। इट अलाउज डेटा आइटम्स टू बी ऑफ वेरियस साइजेस। तो अभी तक हमने ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया। अब हम कुछ डिफरेंट वे में सोच रहे हैं कि जो हमें डेटा आइटम लॉक करना है किसी भी ट्रांजैक्शन को यूज करने के लिए, तो वो एक पूरा डेटाबेस भी हो सकता है, वो एक सिंपल टेबल भी हो सकता है, वो एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, एक टपल भी हो सकता है, या फिर एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, a = 100, वो तो हम अब तक सीखते आए हैं। And it defines a hierarchy of data granularities where the smaller granularities are nested within the larger ones. तो जब भी हम ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे, एक हायरार्की बनाएंगे, तो हमेशा जिन भी ग्रैनुलैरिटी यानी कि जिनका भी साइज बड़ा है वो सबसे टॉप पर रहेंगे, फिर हम नेस्ट करते जाएंगे स्मॉलर ग्रैनुलैरिटीज को अंडर दोज थिंग्स। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ ट्री। एंड यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है जो मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी का मेन फीचर है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन लॉक्स अ नोड इन द ट्री एक्सप्लिसिटली, it implicitly locks all the nodes descendants in the same mode। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी की। तो क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। ये डायग्राम से हमें ज्यादा समझ आएगा। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये कहता है कि ये एग्जांपल है ग्रैनुलैरिटी हायरार्की का। टॉप लेवल पर हमेशा सबसे पहले सबसे बड़ी साइज का डेटा आइटम विच इज डेटाबेस इटसेल्फ। इसके अंदर देखो इसने अलग अलग एग्जांपल दिए, तो आप सोच सकते हो भाई ये हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर 2 अलग अलग टेबल्स हैं, और फिर हर टेबल के अंदर जो है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फाइल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, और फिर किसी भी वे से इन्होंने देखो जो रिप्रेजेंट किया हुआ है डेटाबेस, फिर एरिया, फिर ये फाइल है, फिर ये रिकॉर्ड्स हैं। तो आगे रिकॉर्ड्स के अंदर वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना कैसे है और क्या ये बोल रहा है वो हम सीखते हैं। तो उसके बाद व्हेन अ ट्रांजैक्शन लॉक्स अ नोड इन द ट्री एक्सप्लिसिटली, इट इम्प्लिसिटली लॉक्स ऑल द नोड्स डिसेंडेंट इन द सेम मोड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। तो ये क्या कहता है, तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी डेटा आइटम्स हम लॉक कर सकते हैं डेटाबेस में, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। और ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम हमेशा कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जो सबसे ज्यादा बड़ा साइज का डेटा आइटम होगा वो टॉप पे होगा, उससे छोटा उससे नेक्स्ट लेवल पर होगा, उससे छोटा उससे नेक्स्ट लेवल पर होगा, और सबसे छोटा साइज का जो डेटा आइटम है वो है हमारा ओके। मैं 5 मिनट में फिनिश करता हूँ आत्विक। ओके सर। सो डीबी सबसे बड़ा साइज एंड रिकॉर्ड सबसे छोटा साइज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइन ग्रैनुलैरिटी। फाइन ग्रैनुलैरिटी हम बोलते हैं जब हम लॉक एक्वायर कर रहे हैं बेसिकली लोअर लेवल्स पर या स्मॉल साइज डेटा आइटम पर, और कोर्स ग्रैनुलैरिटी हम बोलते हैं जब हम लॉक एक्वायर करने की कोशिश करेंगे उन डेटा आइटम्स पर जिनका साइज बड़ा है, यानी कि वो ट्री में सबसे टॉप पर है कहीं, यानी कि फर्स्ट 2 लेवल की हम बात करें, और लास्ट 2 अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे फाइन ग्रैनुलैरिटी। चलो मैं लास्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज के साथ लेक्चर को खत्म करता हूँ। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो 3rd लाइन लिखी है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन लॉक्स अ नोड इन द ट्री एक्सप्लिसिटली, इट इम्प्लिसिटली लॉक्स ऑल द नोड्स डिसेंडेंट इन द सेम मोड। चलो तो यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि ट्रांजैक्शन T1 थी, उसने एक एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर किया इस फाइल पर जिसका नाम है FB। तो मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी क्या बोलती है भाई, अगर किसी ट्रांजैक्शन T1 ने इस डेटा आइटम पर, इस फाइल FB पर एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर कर लिया, तो भाई उस ट्रांजैक्शन T1 को इस फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं RB1 से RBK तक, तो उन पर अलग से एक्सक्लूसिव मोड वाला लॉक एक्वायर करने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो दोनों रिकॉर्ड्स हैं ये इसी फाइल का पार्ट है। तो एक सिंपल सी बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं भाई, कोई बना बनाया हमारे पास टेबल है,
तो टेबल के अंदर रोज हैं एंड कॉलम्स हैं, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन इस पूरे टेबल पर लॉक एक्वायर कर लेती है तो डेफिनेटली उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो भी ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली लॉक हो जाएंगे। उस एक रिकॉर्ड को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए उस ट्रांजेक्शन को अलग से लॉक की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ट्रांजैक्शन T1 ने इस पर एक्सक्लूसिव मोड में लॉक एक्वायर कर लिया तो इस पर भी एक्सक्लूसिव लॉक लग गया, इस पर भी एक्सक्लूसिव लॉक लग गया। तो इस टाइम पर और कोई ट्रांजैक्शन इन दोनों में से या जितने भी यहाँ रिकॉर्ड्स इस फाइल के अंदर हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलो बाकी हम करेंगे इसको थोड़ा सा कंटिन्यू, क्या इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ट्यूसडे होपफुली।